بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک نیوز کے پروگرام لائیو ود بشارت دودی میں آج ہم بات کریں گے، جو سب بات کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کب ہوں گے۔ یہ سوال ہمارے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں گردش کر رہا ہے، اور ایک انسرٹنٹی ہے، ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کیا اس سال ہوں گے، اگلے سال ہوں گے، یا کوئی اور ارینجمنٹ بنے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینلسٹ میں بہت سینئر لوگ موجود ہیں۔ جناب چودھری مسعود اختر صاحب، جو ماہر قوانین ہیں، انتخابی قوانین، اور جناب خرم صادق صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شیخ عبدالرشید صاحب موجود ہیں، معروف تجزیہ کار اور کالم نگار۔ بات کا آغاز کریں گے جناب چودھری مسعود اختر صاحب سے۔ چودھری صاحب فرمائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا الیکشن اس سال ہو جائیں گے؟ ہاں جی، اس کے میرے مطابق تو دو جواب ہیں، ایک کتابی اور مختصر سا جواب، اور ایک پاکستان کی انتخابی اور دستوری تاریخ کے حوالے سے وہ تھوڑا سا طویل جواب ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں دوسرے حصے سے پہلے بات کر لوں، پھر وہ جی مختصر اور کتابی جواب بھی۔ جی پاکستان کے آئین جو ہیں، 4 آئین پاکستان کے بنے تھے پاکستان کی تاریخ میں۔ پہلا آئین 1954 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے بنایا تھا، جی لیکن یہ دستور جو ہے نفاذ سے پہلے ہی گورنر جنرل غلام محمد نے اس دستور ساز اسمبلی کو برخاست کر دیا، اور 1954 کا جو دستور تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی منسوخ کر دیا۔ یہ اس وقت کی فیڈرل کورٹ کے پاس کیس گیا، اور چیف جسٹس منیر نے گورنر جنرل کے حکم پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے پاکستان کے بہترین مفاد میں قرار دیا۔ اب اس کے بعد دوسری دستور ساز اسمبلی نے 1956 میں دوسرا آئین بنایا، لیکن اس کے مطابق اس وقت کے اسکندر مرزا صدر نے نومبر 58 کی تاریخ الیکشن کے لیے مقرر کی، لیکن یہ دستور بھی اپنی کم سنی میں ایک اور مارشل لا کا شکار ہو گیا۔ جنرل ایوب خان نے 7 اکتوبر کو اس آئین کو منسوخ کر دیا، اور اس کے تحت ہونے والے انتخاب جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرا آئین آتا ہے 1962 میں، جو ایک ڈکٹیٹر نے دیا تھا۔ اس کے تحت 2 انتخاب ہوتے ہیں، ایک 1962 میں اور دوسرا 1965 میں۔ 1962 میں کے آئین کے مطابق اس اسمبلی کی مدت 3 سال تھی، جو اس نے مکمل کی۔ البتہ 1965 میں قائم ہونے والی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت مکمل نہ کر سکی، اور 69 میں یا ہاں کے ہاتھوں یہ آئین بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد 1970 میں ایک الیکشن، پہلا الیکشن 23 سال بعد، پاکستان کے قیام کے 23 سال بعد جو ہے منعقد ہوتا ہے۔ وہ ایک مارشل لا کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس کے نتائج کو بھی تسلیم نہ کیا گیا، اور یہ ملک 2 لخت ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا آئین جو 1973 کا، اس کے تحت 10 انتخابات ہوئے ہیں۔ پہلا انتخاب 1977 میں، دوسرا 85 میں، پھر اس کے بعد 90، 93 اور 97۔ 6 جو انتخاب ہیں ان کی اسمبلیاں تو اپنی مدت پوری نہ کر سکیں، اور ان کی اوسط جو میعاد تھی وہ 2 سال رہی ہے۔ البتہ 4 اسمبلیوں نے 1973 کے آئین کے تحت اپنی میعاد مکمل کی ہے، ایک 2002، ایک 2008، 2013 اور 2018۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جو ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ تھی وہ کچھ مدت کے بعد وزیر اعظم تبدیل کرتی رہی۔ یہ اوپر کے اشارے سے ہوتا تھا، اس لیے ملک میں کوئی استحکام نہ ہوا۔
پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ انتخاب منعقد نہ کرانے، بر وقت نہ کرانے اور اسمبلی کی مدت پوری نہ ہونے، یہ ساری آئین شکنی جو ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اور اب تو پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس تاریخ شکنی کو جو ہے ان نے اس طرح قبول کر لیا ہے کہ ان کو نہیں پتا کب کو آئین ٹوٹے گا، بار بار ٹوٹے گا، اور لوگوں نے اس کو ایک معمول کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ جی، اور دوسرے لوگ، تمام اداروں اور لوگوں کو اس بات کا خبر ہو چکی ہے کہ آئین کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر سے آتا ہے اور نیچے سے سب کا سب مانتے ہیں۔ اب تو حد یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ دو جماعتیں، بڑی جماعتیں جو جمہوریت اور انتخاب پر یقین رکھتی ہیں، اب وہ لوگوں کو سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے۔ اب جی، ان حالات میں کوئی شخص بھی پاکستان میں انتخاب کے بارے میں کوئی تاریخ کا تعین نہیں کر سکتا۔ البتہ جو مختصر جواب میں دینا چاہتا ہوں جی، وہ بڑا آئین کے مطابق اور کتابی صورت میں اس اسمبلی کی مدت 13 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور جی، آئین کے مطابق اگر یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو 2 مہینے کے اندر انتخاب ہونا ضروری ہے، لیکن اگر 2 دن بھی یہ قبل از وقت توڑ دی جاتی ہے تو 3 مہینے کے تحت الیکشن ہونا جو ہے آئین کے مطابق ضروری ہے۔ دوسرا جو اس کا امکان ہے وہ یہ ہے کہ اگر مردم شماری جو ہے اس کو سرکاری طور پر اس کو گزٹ کیا جاتا ہے تو اس گزٹ کے بعد یہ آئینی تقاضا ہے کہ اس مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندی ہو، اور اس کے لیے 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور جو اور سب اس کیا کے بعد ابھی یہ گزٹ کیا گیا اس کو؟ میں سوال سمجھ نہیں سکا جی۔ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کو گزٹ نہیں کیا گیا ابھی تک؟ ابھی تک اس کو گزٹ نہیں کیا گیا۔ سرکاری گزٹ میں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کی اپروول چاہیے، اور اس کے بعد اس کو سرکاری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن اس کی جاتی ہے۔ اگر وہ ہو جائے گی تو اس کے لیے 6 ماہ کا عرصہ چاہیے، جو اگلا اس کے مطابق پھر الیکشن مارچ 2024 یا اپریل میں ہوگا۔ تیسرا جی، جو آپشن ہے حکومت کے پاس وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت جو ہے وہ ہنگامی صورتحال میں 1 سال تک بڑھا دے، تو اس صورت میں یہ انتخاب جو ہے نومبر 2024 کو ہوگا۔ جی شیخ صاحب، پاکستان میں انتخاب شیخ صاحب اس میں میں بعد میں آؤں گا کہ وہ کیا صورتحال ہوگی جب اسمبلی 1 سال کے لیے بڑھا سکتی ہے اپنی مدت۔ میں یہی سوال شیخ رشید صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ شیخ صاحب، اسپیکولیشنز اور افواہوں کا بازار گرم ہے، ایک غیر یقینی صورتحال ہے، آپ کے خیال میں کیا الیکشن اس سال ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ لودھی صاحب۔ میرا چودھری مسعود صاحب سے اتفاق ہے کہ پاکستان ویسے ہی افواہوں اور آئینی غیر یقینیوں کا ملک ہے، اور یہاں انتخابی حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں اس وقت بھی زیر بحث ہیں، لیکن جو گمان کیا جا سکتا ہے، جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن 60 دن کی مدت اگر اسمبلی مدت پوری کرے، یا 60 روز کے بعد، یا اگر وہ 1-2 روز پہلے توڑیں تو 90 روز کے بعد اکتوبر نومبر میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس پر پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پچھلے 2-3 ماہ سے بہت ساری جو پیچیدگیاں ہیں ان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے ساتھ ان کا رابطہ، حلقہ بندی پر بات، ریٹرننگ آفیسرز کی لسٹ کا بن جانا، یہ اس بات کی طرف ہمارا رجحان جو ہے اس کو یقینی بناتا ہے کہ انتخاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ویسے بھی سیاسیات کے طالب علم ان کے ناطے مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے موجودہ معروضی حالات ایک الیکشن کا تقاضا کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، اور سیاسی بے یقینیوں کے خاتمے کے لیے اور معاشی بہتری کے لیے انتخابات کا ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اور پاکستان کے ارباب اختیار کو علم ہے کہ اس وقت IMF نے جو انہیں فنڈنگ دی ہے، جو معاہدہ کیا ہے، اس میں پہلی قسط اس حکومت کو
दूसरी अरब की किस्त जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को, और तीसरी किस्त उसके बाद के लिए तारीखें मुतय्यन करके रखी हैं, जिसके अंदर ये जवाब पोशीदा है कि IMF के साथ एग्रीमेंट में भी कहीं इंतखाबात के बरवक्त होने की बात जो है उसको यकीनी बनाया गया है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होते हुए नजर आते हैं, आने चाहिए भी, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत का जो बयानिया है इस वक्त जो है वो भी इस बात को जो है तकवीत फराहम करता है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले ही दुबई में जो मीटिंग्स की और उसका जो तहर्रक है वो भी बताता है कि कहीं इलेक्शन मुहिम जो है उसका आगाज हो गया है। खुद सियासी जमातों के अंदर भी इस पर जो बड़ी बाखबर होती हैं उनके अंदर भी हल्का बंदियों में और हल्कों में जो मामलात हैं उन पर गुफ्त शनीद शुरू हो गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लम्हाए मौजूद में पाकिस्तान में ऐसी कोई गैर जरूरी गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें 1 साल का असम्बलियों की मुद्दत में इजाफा किया जाए। ये बजाते खुद एक और बेयकीनी को जन्म देगा, और पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त किसी और सियासी बेयकीनी की मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हालात का तकाजा, पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा, पाकिस्तानी आइन जो है उसकी शर्त यह है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर या नवंबर में हो जाएं, और मुझे ये इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे। जी खुर्रम सादिक चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या इस सूरत हाल में, चूंकि कि गैर यकीनी तो है जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत जब असम्बली पूरी करती है तो उसके बाद होते नजर आ रहे हैं? जैसा कि चौधरी मसूद अख्तर साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि पाकिस्तान की जो आइनी और इंतखाबी तारीख है वो इस तरह की रही है कि उसमें गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होना कोई अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि इंतखाबात का ऐलान करके उसके बाद आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी आवाज़ ऑडियो अपनी ठीक कीजिएगा। जी मैं इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें शायद इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं होगा, और जो ख़ास करके पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो इस तरह की है कि इसमें सियासी गैर यकीनी पाकिस्तान की रियासत शायद अफोर्ड नहीं करती। इसलिए मैं समझता हूँ कि असम्बलियों की मुद्दत जो सिंध असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है और कौमी असम्बली है, वो अगस्त के दूसरे हफ्ते में उनकी मुद्दतें पूरी हो रही हैं। मेरा जो अंदाज़ा है वो यही है कि या तो ये असम्बलियाँ मुद्दत स्टार्टिंग के अंदर यानी अक्टूबर 8-10 अक्टूबर को हो जाएंगे, और अगर ये असम्बलियाँ तीनों जो हैं ये 1-2 दिन पहले डिज़ोल्व कर दी गई तो फिर ये इलेक्शन 8-9 नवंबर के अंदर हो जाएंगे। मुझे ये इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में जो वाहिद इदारा शॉर्ट्स कॉल करता है वो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि पाकिस्तान के ज़रूरी तरक्की के मंसूबों में, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मंसूबों में बराह रास्त शामिल हो गया है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी ज़रूरी शोबे के मंसूबे के हवाले से या किसी मुआशी शोबे के मंसूबे के हवाले से किसी कमेटी का मेंबर हो आपका आर्मी चीफ। इसलिए जो पाकिस्तान के इलाकाई तनाजुर में हालात हैं और जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद एक केयर टेकर हुकूमत या एक निगरान हुकूमत मसाइल का हल नहीं है। और इसके अलावा भी अगर आपने मुआशी तरक्की करनी है तो उसके लिए आपको बहुत से आलमी इदारों से डील करना है, जिनमें यूरोपियन यूनियन, जिनमें IMF है, जिनमें वर्ल्ड बैंक है, जिनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है। वो भी किसी आरजी हुकूमत से बात नहीं करते और आरजी हुकूमत को उस तरह से लेजिटिमेसी हासिल नहीं होती। इसलिए जो प्लान बन रहा है मुझे अगले 10 साल में कोई इस तरह की सियासी गैर यकीनी नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में हो जाएंगे। तो साहब एक ज़िम्नी बात अर्ज करूं कि इलेक्शन में 1 साल की एक जो एक्सटेंशन है उसमें कौमी असम्बली की मुद्दत में तो इजाफे का आइन में दर्ज है, लेकिन आइन में यही चारों सूबाई असम्बलियों की मुद्दत में इजाफे के हवाले से कोई तस्करा नहीं है। तो अगर कौमी असम्बली की मुद्दत में एमरजेंसी के हालात में 1 साल का इजाफा भी कर दिया जाए तो क्या फिर आइन चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने पर तो कोई कदगन नहीं लगा रहा, तो क्या वो हो जाएंगे? तो ऐसी सूरत में किसी नई आइनी मुशगाफी में घूमने की बजाय जो होते हुए इलेक्शन हैं वो ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहे हैं।
جی اس پر مزید بات کریں گے، ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ پاکستان کی آواز پاک نیوز نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے، گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاقائی مسائل کے حل کے لیے پاک نیوز بنے گا آپ کی آواز۔ پاک نیوز اٹھائے گا ظلم کے خلاف آواز۔ پاک نیوز آپ کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائے گا۔ پاک نیوز کا عزم ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھتے ہوئے مستند خبریں اور غیر جانبدار تجزیوں کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی فراہم کرتا رہے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں کرپشن، لاقانونیت یا غیر ضروری سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو ہم بنیں گے آپ کی آواز اور آپ کی آواز پہنچائیں گے حکام بالا تک۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پاک نیوز کا حصہ بن کر آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں۔ چیئرمین اعجاز حسین جان کی کاوشوں، انتہائی لگن، محنت، پاک نیوز پاکستان کی آواز۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا لڑکا۔ کیا ہوا؟ میں یہ نظر نہیں پڑوں گی۔ کیوں؟ ان لڑکوں کے لیے وہاں سب مجھ پر ہنس رہی تھی۔ اچھا ہوتا اگر ہم لڑکیوں کو بھی بڑے کام کرنے کے خواب دکھاتے۔ جتنے تمہارے بال مضبوط ہیں اتنی ہی تم بھی۔ کسی کی فکر نہیں کرنی۔ یہ لو تمہاری نظم۔ میں چھوٹی سی ایک لڑکی ہوں پر کام کروں گی بڑے بڑے۔ میں اڑ سکتی ہوں ہواؤں میں، میں چڑھ سکتی ہوں پہاڑوں پہ۔ لائف بوائے شیمپو کا مشن لڑکیوں کو تعلیم کے ذریعے مضبوط بنانا ہے۔ بیٹی پڑھاؤ، اسے مضبوط بناؤ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ پاکستان کی آواز پاک نیوز نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے، گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاقائی مسائل کے حل کے لیے پاک نیوز بنے گا آپ کی آواز۔ پاک نیوز اٹھائے گا ظلم کے خلاف آواز۔ پاک نیوز آپ کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچائے گا۔ پاک نیوز کا عزم ہے کہ وہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھتے ہوئے مستند خبریں اور غیر جانبدار تجزیوں کے ساتھ ساتھ شعور اور آگاہی فراہم کرتا رہے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں کرپشن، لاقانونیت یا غیر ضروری سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو ہم بنیں گے آپ کی آواز اور آپ کی آواز پہنچائیں گے حکام بالا تک۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پاک نیوز کا حصہ بن کر آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں۔ چیئرمین اعجاز حسین جان کی کاوشوں، انتہائی لگن، محنت، پاک نیوز پاکستان کی آواز۔ لائیو ود بشارت لودھی میں ویلکم بیک۔ چودھری مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ آئین میں یہ جو 1 سال کی ایکسٹینشن کا درج ہے وہ کیا حالات ہو سکتے ہیں یا ہوں گے جس میں یہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے یا دی جا سکتی ہے؟ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل موجود ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یا باہر کوئی بیرونی خطرہ ہو یا پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ہو کہ اسے عام حالات میں نپٹایا نہ جا سکے، یا دوسرے ایک ایمرجنسی ہے وہ اس کو مالی ایمرجنسی، یہ 2 پروویژن موجود آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں، اگر ان کو انووک کیا جائے تو اس صورت میں قومی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی میعاد مدت میں 1 سال تک اضافہ کر سکتی ہے۔ اب رہا صوبائی اسمبلیوں کا، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ قدغن تو اب بھی نہیں ہے۔ صوبہ سرحد اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے، جس کا آئین کے تحت 90 دن میں انتخاب ہونا ضروری تھا، وہ 5 ماہ
हो चुके हैं उसको, बल्कि 6 माह हो चुके हैं, वहाँ उसका कोई ना इंतखाबी तैयारी है ना इंतखाब हो सका है कि बगैर मैंने जैसे किया गया था कि पाकिस्तान में लोग और अदारे ये महसूस करते हैं कि आइन और कानून किसी किताब में दर्ज नहीं है, यहीं कहीं और से ऊपर से आता है और लोग उसको मान लेते हैं। अब पाकिस्तान में दूसरी जो और उसको दस्तूरी ढांचे में कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये इंतखाब और जमहूरियत उस मुल्क में कामयाब होते हैं जहां अवाम के हकूक हों, तरक्की के हकूक, आज़ादी हो और खुशहाली के हकूक। हकूक के बगैर किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में इंतखाब और जमहूरियत बेमैनी होती है। अब हम पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यहाँ हमारी ज़री अराज़ी और दूसरे अदारे दूसरे मुल्कों को रेन किए जा रहे हैं। इक्तसादी तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क की सनती तरक्की हो, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो, और उस ये शर्त अव्वल होती है किसी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए। और जिस मुल्क में उसके बड़े बड़े अदारे और ज़री अराज़ी जो है वो दूसरी मुल्क को रेन की जाए, उन हालात में ये इंतखाब और जमहूरियत के सवाल जो है ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। जी चौधरी साहब, ये जो माली इमरजेंसी की बात की है, क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करता है? क्योंकि पाकिस्तान में बहरहाल एक क्रिटिकल इकोनॉमिक सूरत हाल तो मौजूद है। ये सूरत हाल तो हमेशा से रही है, ये आज की नहीं है, ये हमेशा से हमारी सूरत हाल यही है। जिस मुल्क में आइन का कोई तकद्दस ना हो, जिस मुल्क की अदालतें चीफ जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक हर आमर के हर कदम को वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही, उस मुल्क में ये कि कोई ऐसे हालात नहीं, इसका तयन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और बिल आखिर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ही जाना है, और हमारे मुल्क की आला अदालतों के जो फैसले हैं इस 75 साल में, और वो अक्कासी करते हैं कि वो हाकिम वक्त की मंशा के बिलअमूम खिलाफ नहीं जाते। जी शेख अब्दुल रशीद साहब, जिस स्टेबिलिटी की हम तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हमें वो स्टेबिलिटी मिलेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही फिर इकोनॉमिक वेलबींग शुरू होगी, आपका क्या ख्याल है कि क्या इलेक्शन के बाद हमें वो इस्तेहकाम मिल सकेगा? देखिए साहब, जिस तनाज़र में गुफ्तगू हो रही है, IMF के मुआहदे के बाद हम बहरहाल उस मुआशी इमरजेंसी के हालात से एक कदम आगे आ गए हैं। जैसे तैसे भी है, वो जो इंटरनेशनल गारंटर्स हैं उनके तनाज़र में हम उस मुआशी इमरजेंसी को लगाने के हवाले से अपना जो कदम है उसको पीछे छोड़ आए हैं। और दूसरी बात जो है कि सियासी हालात तकाजा करते हैं कि मुल्क में जैसा तैसा भी जमहूरी निज़ाम है, बहरहाल उसका इर्तिकाब की जो बेहतरी है वो इंतखाबात के जरिए ही आ सकती है। तो इस साहब ने जैसे बात की कि 2 असम्बलियां पहले से टूटी हुई हैं और वहां सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात नहीं हुए, यकीनन ये सूरत हाल हमारी तारीख पर एक और सवालिया निशान लगाती है। लेकिन शायद उस वक्त जो है सियासी असम्बली इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, और पाकिस्तानी आइन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि ये अलग अलग हो सके, और शायद इसकी आड़ में ही ये डिले हो सका। अब जब जनरल इंतखाबात की बात तो ये दलील भी अपना दम तोड़ चुकी होगी। तो ये मुश्किल लगता है कि इस दलील की बुनियाद पर हम आने वाले अगले साल के जो इस साल के इलेक्शंस हैं उन पर किसी एक नए शक का इजहार करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और यकीनन अगर इंतखाबात जैसे कि हम सबके शुकुशुबात रहे हैं इस मुल्क के इंतखाबात के हवाले से, अगर उनसे बाला हमने कौमी तकाज़ों और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का बंदोबस्त किया, जो यकीनन पाकिस्तान की तारीख में नहीं होते रहे, और किसी एक इलेक्शन पर भी ये कह देना कि वो शफाफ थे मुश्किल लगता है, तो जाहिर है कि गैर शफाफ इंतखाबात गैर जमहूरी होते हैं और वह जमहूरियत को तकवीयत नहीं बख्शते हैं। हमें सही मानों में अवामी जो रायामा है उसके लिए एक शफाफ इंतखाबात के हालात पैदा करने हैं। शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के जरिए जो भी नताइज हैं वो बहरहाल पाकिस्तान के
सियासी इस्तेकाम की तरफ एक कदम हमें आगे ले जाएंगे और उसी की बुनियाद पे हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि मुल्क के सियासी और मुआशी दोनों हालात की बुनियाद इस वक्त इन इंतखाबात पर है। तो पाकिस्तान की तमाम सियासी अशराफिया जो है, पाकिस्तान के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी जो हाकम हैं, उन सब से आपके प्रोग्राम की वसातत से यही अपील है कि वो पाकिस्तान में इंतखाबात की राह में रोड़े ना अटकाएं और किसी एक और आरटीएस की नजर पाकिस्तान के नए इलेक्शन ना हो जाएं। खुदारा इलेक्शन होने दीजिए। इलेक्शन जैसे भी हो वो जमहूरियत के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करते हैं और उसी से जमहूरियत जो है वो तकवीयत हासिल करती है। जैसे इंतखाबात होंगे उसके असरात वैसे ही हमारी आइंदा जमहूरियत पर होंगे। जिस तरह मुस्तहकम इलेक्शन हो जाएंगे उतना ही इस्तेकाम जो है पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम को हासिल होगा। तो मैं खुशगवानी का इजहार करूंगा कि इस वक्त जो नया सियासी मंजरनामा बन रहा है, बन चुका है, जिसमें खुर्रम चौधरी के मुताबिक से चिलमन हल्के जो हैं बहुत मुतहर्रिक होकर सामने आ गए हैं। मुझे लगता है कि अगले सियासी इंतखाबात के लिए उनकी जो सियासी खेती है उसके लिए भी जरूरी है कि शफाफ, आजादाना और बर वक्त आईनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबात हो जाएं और पाकिस्तान के असहाबुर राय को इंतखाबात के हवाले से होकर एक होना चाहिए। सही शफाफ इंतखाबात की बात जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है और मैं रोशन मुस्तकबिल के हवाले से शफाफ इलेक्शंस का हामी हूं और उसी के लिए दुआगो हूं। खुर्रम चौधरी साहब, क्या आपको तवक्को है कि शफाफ इंतखाबात होंगे या पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है जो पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख रही है, शफाफ इंतखाबात होंगे या 2018 जैसे ही इंतखाबात मिलेंगे? लोधी साहब, 2018 हो या उससे पहले के इंतखाबात हों, पाकिस्तान में मुकम्मल शफाफ इंतखाबात तो शायद कभी भी नहीं हुए और अब भी मुझे उनकी तवक्को नहीं है। जो मौजूदा हालात हैं उनमें हमारे यहाँ सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का काम होता है। हमारे यहाँ ये फैसला कहीं और होता है कि अगली हुकूमत किसको दी जानी है। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका मुल्क मुआशी तौर पे मुश्किलात का शिकार है तो आप जो भी हुकूमत लाएंगे उसको एक जायजियत हासिल है, उसको एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए जो इंतखाबात के बगैर नहीं आ सकती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हो उसके साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डील नहीं करेंगे। और यूरोपियन यूनियन है, कॉमनवेल्थ है, अक़वाम मुत्तहिदा है, अब तो जिन मुल्कों में जमहूरियत नहीं है या इंतखाब नहीं है वो उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे और पाकिस्तान के हालात में मुझे इशारे भी मिल रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। जहाँ तक असम्बलियों की बात है, गो के पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये इलेक्शन एक ज़माने में अलग अलग होते थे, 1-2 दिन के फर्क के साथ सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता था और उसमें ये मामला सामने आया कि कौमी असम्बली के नताइज असरअंदाज होते थे सूबाई असम्बलियों के नताइज पे, इसलिए फिर इनको एक दिन कर दिया गया। अब हमारा साथ हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ स्टेट्स के इलेक्शन अलग अलग होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब से इलेक्शन एक साथ होना शुरू हुए हैं तब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन में होते हैं और इसीलिए शायद जो केपी असम्बली है और पंजाब असम्बली है इसके इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सके कि बाकी 3 असम्बलियों की मुद्दत में 5-6 महीने का फ़र्क रह गया है। तो वो असम्बलियाँ भी अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी तो तमाम इंतखाबात इकट्ठे कर लिए जाएंगे। जब इंतखाबात 1-2 दिन के फ़र्क के साथ असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो फिर हमारा कानून है 2017 का कि वो एक दिन करवाए जाएँ। लेकिन आइन में ऐसी कोई कदम मौजूद नहीं है। ये जो मामला है केपी असम्बली का, ये 2007 में भी ये कुछ दिन पहले असम्बली तोड़ दी गई थी, तब भी ये 90 दिन का और 60 दिन का जो गैप है ये लंबा हो गया था। इससे पहले 1988 में भी एक दफ़ा 172 दिन के बाद इलेक्शन हुए थे। ये पहले भी पाकिस्तान में होता आया है कि जो आर्टिकल 224 में मुद्दत दी हुई है 60 दिन की और 90 दिन की, उससे आगे हमारे इलेक्शन गए हैं। और ये इलेक्शन एक और भी बात है हमारे आइन में जिसको पहले से जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। हमारे आइन का एक आर्टिकल है 254, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी काम के करने के लिए आइन में कोई मुद्दत मुतय्यन की गई हो और वो काम उस मुद्दत में ना हो सके, बाद में हो जाए, तो महज इस वजह से वो गैर आइनी या इनवैलिड नहीं होगा
कि वो वक्त पे नहीं हुआ। इसलिए अगर 60 दिन के या 90 दिन के बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे आखिरकार, तो वो आईनी होंगे, तो वो वैलिड होंगे। एक बात ज़रूर है इसमें जो खदशा मुझे है कि अगर ये आपकी मर्दमशुमारी जो नई है ये नोटिफाई हो गई, तो फिर हल्का बंदी नहीं करना आईनी तकाजा है। उसके बगैर इलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिडेट करती है या पार्लियामेंट करती है, उसके बगैर वो वैलिड इलेक्शन नहीं होंगे। और आपकी पार्लियामेंट इस वक्त मुकम्मल नहीं है, उसमें कौमी असम्बली में भी आपके पास एक जमात बाहर बैठी हुई है, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी करने के लिए मेंबर शायद पूरे नहीं है। इसलिए मुझे लगता यही है कि जो मर्दमशुमारी है उसको शायद नोटिफाई ना किया जाए, और पहले वाली जो मर्दमशुमारी 2018 वाली थी उसी पे इलेक्शन करवा दिए जाए। जी चौधरी मसूद साहब, ये बताइएगा कि शफाफ इंतखाबात हम सब की तवक्को भी है, उम्मीद भी है, दुआ भी है, क्योंकि शफाफ इंतखाबात से ही बेहतर नुमाइंदगी सामने आती है, बेहतर क़यादत सामने आती है। लेकिन शफाफ इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की तारीख बड़ी ग्लूमी रही है, बड़ी मायूस कुन रही है। 2017 में जो सूरत हाल थी और 2018 के इलेक्शन जिन हालात में हुए, सारी पार्टियों के लिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इस वक्त भी हम देखते हैं कि सारी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या इस सूरत हाल में हम जो इलेक्शन होंगे क्या उनको शफाफ कह सकते हैं? अगर तमाम सियासी पार्टियों को इंतखाब में हिस्से के लिए दी तो यकीनन हमारे मुल्क की तारीख के मुताबिक जो मुमकिन शफाफ होते रहे हैं शायद उस हद तक तो हो जाए। अगर किसी एक बड़ी पार्टी को भी इंतखाब से बाहर रखा गया किसी नाइली की बुनियाद पर या किसी और जबर के तरीके से, तो ये इंतखाब जो हैं ये महज एक रस्मी कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इंतखाब का लेबल तो होगा लेकिन ये कोई दस्तूरी इंतखाब नहीं होगा। शेख रशीद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा कि 2018 में कि कोई एक पार्टी हदफ थी उस वक्त की इंतज़ामी मशीनरी का, इस वक्त भी हम देखते हैं कि एक पार्टी हदफ है इंतज़ामी मशीनरी का। तो इस सूरत हाल में जो क़यादत सामने आएगी उससे स्टेबिलिटी बन सकेगी, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ वजूद में आएंगी उससे पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल सकेगा। साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इंतखाबात अपने होने से पहले ही मुतनाज़ा हो जाते हैं। जैसे कि इस वक्त भी सूरत हाल इलेक्शन से पहले जो बनी है उसमें ही तनाज़ात खड़े हो गए। यकीनन एक सियासी हुकूमत या एक असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद हालात को गैर जानबदार हो जाना चाहिए, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब ही गैर जानबदार हुकूमत है, गैर जानबदार इंतजामिया है और एक गैर जानबदार सियासी माहौल जो है उसका क़याम है। अगर हम वो करने में नाकाम रहे तो फिर हम इस गैर जानबदारियत जो है उससे महरूम होकर जो गैर मुस्तहकम भी जो है वो रहेंगे। सवाल यही है, हमारे हालात का तकाजा भी यही है कि हमें बहरहाल पाकिस्तान में शफाफ इंतखाब के लिए फ़ज़ा को साजगार करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। हुबुल-वतनी का तकाजा भी यही है। और अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है और पाकिस्तान के साहब-उर-राय लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाज़ों पर पूरा उतरते हैं, तो उन्हें यकजुबान होकर आज़ादाना मुनसफाना इंतखाबात की दाखबिल डालनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक सियासी जमात को इंतकाम का निशाना बनाकर आप अगर इंतखाबात में उतरेंगे तो इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो हमें बहरहाल बहुत सारे मुमकिना इक़दामात से हटकर फ़ज़ा को ऐसा साजगार रखना है ताकि मुल्क में जमहूरी जो सफ़र है वो आगे मंजिल की तरफ बढ़ सके। तो अब जो हो चुका उस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, लग जाइए। और अगर वो नहीं लगेगा और हम ज़ातियात की बुनियाद पर ही अगर हम एक सियासी रहनुमा और एक इस्टेब्लिशमेंट के अहम रहनुमा के दरमियान खींचातानी की साजिश का शिकार हुए तो यकीनन इंतखाबात गैर जानबदार नहीं होंगे। और लोधी साहब, जो इंतखाबात शफाफ ना हुए तो पाकिस्तान में सियासी मंजर भी साफ और शफाफ नहीं होगा, और साफ और शफाफ नहीं हुआ तो पाकिस्तान में इर्तिका का जो है वो भी उसी क्या बदलियों का शिकार होता रहेगा। तो खुदारा हमें अपनी सियासी ज़ोमा को, पाकिस्तान की एलीट क्लास को, पाकिस्तान की सियासी समाजी अशराफिया को ये दरख्वास्त करनी है कि हर कोई
इंतखाबात के शफाफ होने के लिए अपना किरदार अदा करे और आईनी तौर पर पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। यकीनन इस वक्त एक सियासी हुकूमत है जो 12 अगस्त को खत्म होगी। सियासी हुकूमत के तनाज़रात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हमें एक गैर जानबदार केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत है, और केयर टेकर गवर्नमेंट कैसी आएगी उसी की बुनियाद पर फैसला हो जाएगा कि इंतखाबात मुतनाज़ा होने हैं या वो फिर वैसे ही होने हैं। मसूद साहब जो हैं पिछली 1 सदी की तारीख के हवाले से जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, हमें नई नस्ल को एक महफूज पाकिस्तान देने के लिए चौधरी मसूद के खदशात को जो है खत्म करना जरूरी है, और हमें आगे बढ़ना है, और हमें यकीन दिलाना है तारीख के तालिब इल्मों को कि नहीं, अब पाकिस्तान में एक नया सियासी इज्तिहाद हो गया है, और हमें आगे बढ़ने के लिए अपने जाती तमाम पार्टियों को एक सतह पर आकर एक ऐसी जमात जो किसी हवाले से खुद जो है परस्ती का शिकार हो गई है, उसको भी बहरहाल एक कदम पीछे हटना होगा। उसकी क़यादत को भी रोमांस जो सियासी है उससे हटना होगा, हकीकत पसंदी की सियासत करनी होगी। पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेकाम के लिए सियासतदानों का एक खुला मुकालमा जो है वो बहुत जरूरी है, और ये वक्त और हालात का तकाजा है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासी कायदीन के दरमियान आइंदा इंतखाबात के हवाले से पहले एक मुकालमा हो, और उसी की बुनियाद पर एक नए इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाए, और यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत हो सकता है। खुर्रम जोशी साहब, क्या आपको, जिस तरह शेख रशीद साहब ने फरमाया कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, क्या आपको उम्मीद है कि इस तरह का ग्रैंड डायलॉग हो सकता है कि जबकि जिस तरह 2017 के अंदर कोई एक पार्टी हदफ थी, आज भी एक पार्टी हदफ है, तो इस सूरत हाल में ग्रैंड डायलॉग हो सकता है और उस पार्टी का जिस पर इंतजामी मशीनरी ने अपने जेर हदफ रखा हो? मैंने पहले भी गुजारिश की है कि पाकिस्तान में सियासत में मुदाखलत होती है वहाँ से या उन हलकों की तरफ से जिनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पार्टियाँ बनाने और तोड़ने का काम किया जाता है, जो काम अब तक जारी है, और इसमें जो भी नई जमातें बनाई जाती हैं उनको एक सबक दिया जाता है कि आप का वजूद इस बात के साथ मुंसलिक है कि आपने पहले से मौजूद जमातों के खिलाफ बात करनी है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जिसमें रूल्स ऑफ गेम तय किए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, तो वो बात कुछ हलकों को पसंद नहीं आई और फिर एक नई जमात पे इस मुल्क में काम शुरू कर दिया गया। ये हमारे यहाँ जो सियासत में बिटरनेस है ये खुद बहुत से नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर होती हैं, वो आपस में बैठ के कुछ उसूल तय करना शुरू करती हैं, तो फिर मुदाखलत शुरू हो जाती है। मुझे मुस्तकबिल करीब में नहीं लगता कि तमाम ऐसा कोई डायलॉग करेगी। हाँ, अगर इन्होंने शुरू भी किया तो फिर भी शरारतें शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में मैंने पहले भी गुजारिश की कि फैसले शायद सारे फैसले अवाम के वोट से नहीं होते, कुछ फैसले शायद कहीं और होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान एक वफाक है, वफाक में मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। अगर आप इकाइयों को उनके हुकूक नहीं देंगे, उनको इख्तियार नहीं देंगे, तो रियासत कमज़ोर होगी। इससे पहले भी हमने 1971 में देखा कि एक सानिया हो गया जब हमने एक इकाई को उनके हुकूक नहीं दिए और उनकी इंतहाबी फतह के बावजूद भी उनको इक़्तिदार नहीं दिया, तो उससे मसाइल पैदा हुए। कभी भी रियासत मजबूत नहीं होगी अगर हम मुख्तलिफ इकाइयों के अंदर बेचैनी जो है उसको ख़त्म नहीं करेंगे और शफाफ इंतखाबात नहीं करेंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा दूर नहीं है। जो अगले 4 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं उसमें मुझे कोई आइडियल सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। जमहूरियत जब तसलसल के साथ चलेगी, जितना हम मार्शल लॉ से दूर जाते जाएंगे, आखिरी मार्शल लॉ 2007 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद से अब तक मार्शल लॉ नहीं लगा। इतना लंबा अरसा इससे पहले कभी नहीं गुजरा। मेरी नज़र में ये बात खुशाइंद है। पाकिस्तान में एक ज़माना था जब हमारी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद नहीं थी, हमारा इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं था, हमारे यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनमी नहीं थी। हमने 18वीं तरमीम के अंदर इलेक्शन कमीशन को आईनी तौर पे आज़ाद किया, हमने सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को आईनी तौर पे आज़ाद किया, हमने प्रोविंशियल ऑटोनमी दी, जिससे बेहतरी आई है। अब पाकिस्तान में बैलेट वाले दिन
غلط بیلٹ ڈالنا شاید کافی حد تک مشکل اور ناممکن ہو گیا ہے. اب ہم جو سیاسی دھاندلی کرتے ہیں وہ پری پول ریگنگ کرتے ہیں یا پوسٹ پول ریگنگ کرتے ہیں یا مینیپولیشن کرتے ہیں. اب صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مزید بہتر ہوتی جائے گی اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئی. اس میں سیاسی قیادت کو سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا اور بالکل اس میں کوئی احمقانہ حرکت نہیں کرنی ہوگی کہ ہم دوبارہ اپنے اوپر کوئی امریت مسلط کر لیں. بہت سمجھداری کے ساتھ چلتے رہیں, بہتری آئے گی. مستقبل میں جو ہم آگے چلتے جائیں گے انتخابی نظام بھی پاکستان میں شفاف ہوتا جائے گا. ہم سب کی خواہش بھی ہے, توقع بھی ہے کہ شفاف انتخابات ہوں اور جس طرح 2017 اور 2018 کے اندر کسی ایک پارٹی کو ناہموار میدان ملے اور اس کو اس طرح کھل کھیلنے کی اجازت نہ ملے, اس سے اسٹیبلٹی نہیں آتی, سسٹم اسی طرح لرزتا رہتا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا کہ شفاف انتخابات ہوں اور ساری پارٹیوں کے لیے ایک ہموار میدان ملے, لیول پلینگ فیلڈ ملے, اس وقت تک ہم توقع نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر سے ہمیں وہ منتخب قیادت ملے جو بولڈ فیصلے کر سکے, جو بڑے فیصلے کر سکے, جو پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی اکنامک ویل بینگ ان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. تو قیادتیں اسی وقت آئیں گی جب شفاف انتخابات ہوں, قیادتیں اسی وقت آئیں گی کہ جب سب کو برابر کے ہموار ماحول ملے اور ایسا ماحول ملے کہ جس کے اندر وہ اپنا پروگرام بھی پیش کریں, اپنا ایجنڈا بھی پیش کریں, اور کسی کو یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ الیکشن سے پہلے مقبول قیادتوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, ریزنز جو بھی ہوں, گراؤنڈز جو بھی ہوں, سب کو برابر کا میدان ملنا چاہیے اور مساوی میدان ملنا چاہیے تاکہ منتخب قیادت آئے اور ملک کو مسائل سے نکالے. میں اپنے پینلسٹ جناب چودھری مسعود اختر ایڈوکیٹ صاحب, جناب شیخ عبدالرشید صاحب اور جناب خورم صادق چودھری صاحب آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. یہ تھا آج کا لائیو ود بشارت لودھی. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اللہ حافظ.